Anyways, you guys can hear me? Yes, sir. Okay, so I'm no sir. You can call me Rahul also. And yeah, this is kind of unofficial meet. So I was waiting for you both only, and some other guys also. Let's wait. Okay, so I would not waste much of our time though. Okay, so see, what I was planning for this Zoom meet was to tell you the importance of these last 15 days. Okay. Now, Kirti is studying for CDS, right? Are you giving AFCAT examination? Okay, cool. So let us not. You are giving, right? No. Okay, fine. So see, पहले मैं AFCAT बता देता हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है AFCAT के लिए, and then we'll go for CDS. Okay. AFCAT look यार last 15 दिन है. I don't want you guys to make up like pick out new topics at this time, rather go for things which you have studied at this time. Like for past 2-3 months you must be studying, right? So उन सब चीजों को उठाओ or start revising those things, because it hurts a lot when you pick, like, in the examination when you sit and the question but you're not recalling the answer कि यार मैंने पढ़ा था, I wish मेरे को याद आता तो. ठीक है. Similarly it goes for CDS also. So at this point what I want from you, like those who are giving for AFCAT, so what I want from you guys is, do not pick out new topics. Okay, especially for GK I've seen a lot of guys who go for new topics till the end moment नए topics पढ़ते हैं. It's not good. Okay, it's not good, because जो आपके पास है, जो आपकी power है, आप उसको, या सो द जो आपने पढ़ा है उस पे ज्यादा रादर फोकस करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा देन पिकिंग अप न्यू टॉपिक्स एट दिस टाइम. See, what happens is when you pick out new topics now, the moment when you get stuck, okay, for example you take modern history at this time. If you start studying modern history at this time, and suppose if you have not understood anything, or say some conceptual topics, for say science में कोई chapter आपने अभी उठाया, and if you do not tend to remember or recall, और आपको समझ में नहीं आए, ठीक है, सो उससे क्या होगा पता है आपको, उससे क्या होगा कि आपका मोराल, और जो आपका मोराल जो होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है, इट टेंड टू गो डाउन. At this time it's very important for everyone who is preparing for AFCAT to increase their uh, confidence. Now confidence plays a very important role, guys. That is very important too. You have to do whatever it takes to keep up that motivation level, because it would, like, if you suck this time, then you will not perform that well which you intend to in your examination. So that is the whole point which I want to make. And also you can revise all the things which you have studied till now. Also attend mocks, give mocks, go for PYQs, judge yourself, analyze yourself, where am I going wrong, and what are the points which I have to take care of. Remember, until unless you don't sit and solve for 2 hours straight for that 300 marks, and you are not scoring 180 to 190, nothing is going to happen. Like, miracle will not happen in your examination. Okay, you have to give at least 10 to 15 marks other than PYQs. Okay, PYQs तो attend करने ही है, previous year question papers तो attend करने ही है, but along with that you have to give mocks so that you analyze yourself कि how much am I doing, how much do I recall. All right. And ये तो आप हर रोज सुबह, suppose you are dedicating every day morning, say what, 8 to 10 a.m. for examination. Okay, mock papers के लिए. फिर you have, if you are not a working candidate, or if even if you are a working candidate, study or revise those things in the later half of the day.
ठीक है, एंड देन ट्राई टू अप्लाई दैट नॉलेज विच यू हैव रिवाइज. डेफिनेटली एट दिस टाइम योर स्पीड विल इंक्रीज, राइट, क्योंकि आपने सारी चीज पढ़ी है, रिवीजन कर रहे हो आप. रिवीजन करते टाइम ना आपका यू कैन लाइक एक लाइन पढ़ते जाओगे तो आपको सारी चीज रिवाइज हो जाएगी, क्योंकि समझने की जरूरत नहीं होती है. एट दिस टाइम इट विल नॉट बी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड, just that you are revising those concepts. Okay, for example mathematics में चीजें रिवाइज करना बहुत जरूरी है. Fine. Now this question has a separate method to solve. All right. So you can do that. Now, AFCAT ka mathematics and reasoning should be your base. By this time, it should be very clear in your mind that you are going to keep it as a base of yours, and you are going to solve that only first. Okay. 33 plus 18, around 50 questions aate hain. Half of the paper is mathematics and reasoning. You have to score at least 40 marks, 40 questions right. 40 questions right. Okay, 40 threes are 120. Okay, 4 threes are 120 hota na. Yeah, 120 120 marks आप यहाँ स्कोर करोगे. बाकी इंग्लिश और जीके में इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्कोर at least 80 marks, guys. Then only you will be like break it. Even if your English is good, even if your GK is good, but still वो कैब अगर मैं पूछूं तो कितना पढ़ोगे आप? It's an ocean, right? Again, it's an ocean like GK अगर मैं बोलूं तो कितना पढ़ोगे आप? Even if you dedicate 10 years for GK, you'll still be remaining with a lot of things which you wanted to study. Okay, but unlike mathematics and reasoning, you get expected questions. The first priority of yours, and no one is going to come you and ask you which questions you have attempted, which questions you have left. Okay, no one is going to ask you. So mathematics should be your number one priority right now at this time, and start solving more and more questions on that. Mathematics को सबसे ज्यादा priority दो इस time पे, क्योंकि it's simple, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं मैथमेटिक्स से. फाइन, मैथमेटिक्स को आप अच्छे से कर लोगे, उसके बाद में आप रीजनिंग को उठाओ. रीजनिंग में आई कैन कंसिडर अगर आपने 40 लाइक 200 to 300 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए दिन के, अगर 50 क्वेश्चन के हिसाब से भी आप 5-6 दिन में आप पूरा रीजनिंग खत्म कर सकते हो. फाइन, these two will boost up your confidence like hell, guys. मैं बता रहा हूँ, I'll tell you मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है. सो मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उसमें मेरे दोस्त लोग हैं जिन्होंने AFCAT एग्जामिनेशन 200 मार्क्स से क्लियर किया है. वन वाज वर्किंग कैंडिडेट, ठीक है, उसने सिर्फ दिन में 2 घंटा डेडिकेट किया है, 201 मार्क्स लाया था वो. एंड अदर गाय वाज फ्रॉम बायोलॉजी बैकग्राउंड. मतलब 10th तक हम साथ में थे, आई मीन डेफिनेटली 11th 12th में भी साथ में थे, लेकिन स्ट्रीम अलग हो गया था. मैं PCM, मैंने I've taken like I took PCM and he took PCB. So he switched himself off from mathematics from 10th standard. He not only cleared AFCAT examination with 193 marks, even he cleared his OTA cutoff, got recommended from AFSB Varanasi just 1 week before, not 1 week, 2 weeks before. And Karthik Kadam got recommended 1 month before. Okay, so these इनके experiences, I'll just share my screen and try to tell you. If you go on YouTube, okay, if you go on YouTube, you search my name Rahul Inchal. Okay, आप राहुल इंचल को search करोगे तो you will get this winner's guide. Okay, winner's guide, you click on that. This is my channel. Okay, so I'm taking AFCAT crash course here. I'm like, you'll see me every day over here. मैं हर रोज एक वीडियो डालता हूँ, कोई ना कोई. So watch this video. Even if you don't want to watch other videos, I don't mind. You watch this video. Okay, और ये जो recorded session है ये YouTube पे ही upload होगा, ठीक है. So ये आशीष का देखना एक, एंड यहाँ पर आप अगर नीचे जाओगे, जस्ट अ सेकेंड, अगर आप नीचे, ये कार्तिक कदम का स्ट्रेटेजी ऑफ 200 मार्क्स, ये दोनों अगर आप देखोगे, इन दोनों का मैंने इंटरव्यू लिया हुआ है. फाइन, इन दोनों का इंटरव्यू लिया हुआ है. दे हैव शेयर्ड अ वेरी गुड स्ट्रैटेजीज, क्योंकि AFCAT, I again tell you guys कि AFCAT is a sort of examination where you can clear it with a perfect strategy. All right, so आप strategy अगर आप अच्छे से बनाओगे तो you can clear it.
Unlike CDS you have to give dedicatedly time देना पड़ता है. Again I'm telling you, this is my channel, you just have to search my name, you will get winner's guide, and उसमें जाके ये और ये 2 वीडियो देख लेना बस, ठीक, कार्तिक कदम का ये, ठीक है. So I cannot share it in the in group because I don't think so I could share it, but ये दोनों वीडियो जरूर देख लेना आप. फाइन. सो आपको समझ में आएगा. या पार्डन, यहाँ पे लिंक डाल दीजिए आप, जो मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में लिंक डाल दूँगी. एक मिनट डाल रहा हूँ पे लिंक डाल डालो. एक तो ये हो गया, एंड वन मोर. Where is Karthik? यार share. Yep, दोनों वीडियोस के लिंक डाल दिए. You can either save it or like it or whatever you want to do, you do it. Just save it and just try to watch those videos. ठीक है, आज वो दोनों बैठो, मतलब वो बैठ के देखो, watch those videos in which, you know, guys, like, see what happens is you learn from others' mistakes and others, you know, experiences. Okay, so ये लोग ना, I'm mentioning that point कि one was Ashish was bio background. यार मेरे दोस्त थे यार ये लोग, हम साथ में क्रिकेट खेलते थे. ओके, सो ये बायो बैकग्राउंड से था और कार्तिक वाज वर्किंग कैंडिडेट. ओके, मतलब काम कर रहा था अपना, वो बकायदा सुबह 11 बजे से रात को 8-9 बजे तक बिजी था. सो ये बंदे जब आशीष यार, like what else example do you want? A guy who came from a bio background, who studied MBBS, not study psychology पढ़ा है वो, mathematics से completely दूर था, went on to clear AFCAT and CDS also, and also getting recommended. ठीक है, so what else motivation do you require? एंड उसने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी ना, उसके पास कोई मेंटर था, खुद बैठ के क्लियर किया है. सो व्हाट एल्स डू यू वांट गाइस, राइट? सो दैट, इसलिए मैं बता रहा हूं कि जस्ट अ सेकंड, सॉरी, या सो इसलिए मैं बता रहा हूं कि इन लोगों ने ना, कि व्हाट दे हैव डन, दे आर नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल गाइस. दे हैव डन व्हाट they have strategized things. Like me, I was also not like, I'll tell you, first AFCAT which I've given, I scored 139 marks, and AFCAT 2 2019 it was, I guess, जहां पर 142 कट ऑफ था. मैं सिर्फ ऐसे टहलते टहलते गया था. ओके, रीजनिंग के क्वेश्चंस मुझे बहुत पसंद आए, एंड आई लाइक, वो पहली बार मैं सॉल्व कर रहा था रीजनिंग, और रीजनिंग और मैथ्स मेरा एप्टी अच्छा था पहले से, तो मैंने मैथ्स और रीजनिंग के बलबूते पे 139 स्कोर किया था. ऑलराइट, इन द नेक्स्ट जहां मैंने क्लियर किया था, कुछ 18 या 19 मार्क्स से क्लियर किया था, आई एम नॉट श्योर कितने मार्क्स से, उसमें मैं थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ के गया था. ठीक है, एंड देन इन दिस AFCAT 1 2021 आई डिड नॉट क्लियर. AFCAT 1 2021 मैंने क्लियर नहीं किया. क्यों नहीं किया मैं बताता हूँ, कि आई गेव सो मच ऑफ इंपॉर्टेंस टू जीके दैट आई वेंट ऑन टू क्लियर 19 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस. और सही, करेक्ट, ठीक है, 25 में से 19. नाउ इफ यू हैव if you know about AFCAT examination, around 10-11 questions अगर आप सही करके आते हो जीके में, considered to be very good. ठीक है, I'm not boosting myself up, but I'm just trying to give you कैसे पढ़ाई की थी मैंने. 19 क्वेश्चन सही किए थे, बाकी 2 क्वेश्चन भी मेरे माइंड में था, बट 50-50 था मैं, और जो मेरे को डाउट था कि हाँ ये आंसर हो सकता है. जनरल नॉलेज तो मटेरियल कहाँ से दिया था, कहाँ से स्टडी किया था, प्रिपेयर कहाँ से किया था जनरल नॉलेज? मैं बताता हूँ. 25 प्लस 19 आप अपना मटेरियल कहाँ से? मैं बताता हूँ, मैं उस सब पे बताता हूँ. ठीक है, सो ओके, मैं कहाँ था, या सो हाँ, आई डिड नॉट, हाँ एक मिनट बताता हूँ. आपकी आवाज ना थोड़ी सी ये हो रही है, बट खैर ठीक है. सो मैंने क्या किया था, मैं AFCAT 1 2021 मैंने नहीं क्लियर किया, 6 मार्क्स से नहीं क्लियर किया मैंने, शायद से 165 कट ऑफ था, 159 स्कोर किया मैंने कुछ. बट मेरा लाइक डेफिनेटली मेरा मेन मोटिव नहीं है, आपका है मोटिव यहाँ पर. फाइन, नाउ मटेरियल की बात देखो. what did I do? I'll tell you. I sat with the previous year question papers. Okay, I sat with it, gave it like 4 to 5 days जीके के लिए, क्योंकि मैंने AFCAT 1 पिछले साल के दोनों AFCAT क्लियर किए मैंने. ठीक है, और दोनों में मेरे को जीके आया नहीं, सच में नहीं आया, एंड इट काइंड ऑफ हर्ट मी. लाइक आई वाज मैंने ईगो में लिया कि यार जीके क्यों नहीं हो रहा.
सो मैंने उसके साथ ना जीके सॉल्व करना स्टार्ट किया। उसके बाद आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन पेपर, एंड इफ यू सी द क्वेश्चन पेपर गाइस, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप देखोगे तो यू स्टार्ट वाचिंग अ ट्रेंड। ध्यान से देखोगे, इट लाइक एक ही बार वन ग्लांस में नहीं समझ में आने वाला। 4-5 दिन अगर दोगे उसको, खैर अभी तो आप दोगे नहीं, आई डोंट वांट यू टू एट दिस टाइम, बट अगर आप एक दिन भी दोगे ना उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जीके सेक्शन को देखोगे, तो यू विल सी सम थिंग्स apart, like in those 25 questions you can expect some 10 to 15 questions from same topic. For example, जनपीत अवार्ड से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, और रिपीट भी हुए हैं क्वेश्चंस। इफ यू सी ट्रेंड देखोगे, रिपीट भी हुए क्वेश्चंस। ओके, जनपीत अवार्ड ये कोई नहीं बताता यार, ये प्योरली एक्सपीरियंस से आया है। मतलब मैं खुद बैठा था क्वेश्चन पेपर लेके, प्रिंट आउट लिया एंड बैठ के मैं हर एक क्वेश्चन के साइड में टॉपिक लिख रहा था, कहाँ कहाँ से आया। नाउ हाउ डिड आई स्टडी, हाउ डिड आई गेन दैट 19 मार्क्स, आई विल टेल यू। मैंने सारे टॉपिक लिख दिए क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल क्या कोई एग्जांपल दो। फॉर एग्जांपल आयरन पिलर कहाँ पर है, दिल्ली में है सपोज, तो ये कौन से टॉपिक से, ये हिस्ट्री के टॉपिक से, ठीक है, ये मिडिवल हिस्ट्री से है। फाइन, सो मैंने उसके साइड में लिखा मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है। ऐसे ही हेडक्वार्टर का आया क्वेश्चन कोई, वेयर इज दिस लोकेटेड, ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, आई एम नॉट श्योर, क्या याद नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन आया था। उसके साइड में लिखा मैंने कि हेडक्वार्टर्स करके, एंड आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आया। सो सब टॉपिक लिख लिए, ठीक है। उसके बाद आई वेंट ऑन टू रिसर्च अ लॉट अबाउट दैट टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल जनपीत अवार्ड पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। सो जनपीत अवार्ड पे लिखा मैंने, और जनपीत अवार्ड का लेके सारी चीज पढ़ाई की है मैंने। पहला कौन था, दूसरा कौन था, लेटेस्ट कौन है, कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया। तो दीज आर अ सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। ऑलराइट, सिमिलरली अभी ओलंपिक्स चल रहा है, एक्सपेक्ट अ क्वेश्चंस ऑन दैट। या फिर स्पोर्ट्स एंड ऑनर्स है, ठीक है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, सॉरी स्पोर्ट्स है, इन सब से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो, क्योंकि हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफेंस बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ही आते हैं, ठीक है, हिस्ट्री से आते हैं, बट उसमें से आप एक्सपेक्ट करो 2 से 3 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। सो मॉडर्न हिस्ट्री आई विल गिव इट वट एवर आई हैव, मैं मॉडर्न हिस्ट्री पूरी खत्म करूंगा, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री होगा, पॉलिटी में से कहां से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन उठाया, आर्टिकल्स के बारे में पूछते हैं, प्रियम्बल के बारे में पूछते हैं, ऊपर ऊपर से, ठीक है, ये सारी चीजें मैं करूंगा। साइंस, ऑफ कोर्स साइंस मैंने लिया है, 2-3 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन आते हैं, आई कैन नॉट ऑल्सो स्किप दैट, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड। सो आई डोंट वांट, लाइक आई हैव ट्रेन्ड फॉर दैट थिंग throughout my life, and if I'm not correcting that question in the examination, then it's sort of a waste, right? like मैंने वो सारे जो 10-15 साल दिए मैंने, it's waste, right? so मुझे साइंस के क्वेश्चन भी गलत नहीं करने थे। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स की सारी चीजें जानी, नॉट ओनली लाइक क्रिकेट, ठीक है, मैं सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को सारे स्पोर्ट्स के बारे में, मैं एफकेट 1 से पहले मेरे को सारे वाटर पोलो तक के मैं जानने लग गया था, ठीक है, उतना मैं हर रोज, ठीक है। सो आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो फॉर जीके। डेफिनेटली अगर आपको कोई बताएगा नहीं जीके कहां से पढ़ना है, इट विल टेक लाइक यू गिव 1 year आल्सो, यू विल बी लेफ्ट विद अ लॉट ऑफ चैप्टर्स व्हिच यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। ओके, सो जीके इज लाइक एन ओशियन, नो मैटर हाउ मच आप कितने भी बाल्टी से पानी निकालो, ओशियन उतना ही रहने वाला है। तो रादर बी अ वाइज पर्सन, स्टडी दोस टॉपिक्स, नो वन इज गोइंग टू टेल यू कि 25 में से 25 करना है, 15 जो आपके सही, मतलब जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वहां से करो। नाउ हाउ यू कैन सी फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस आर अपीयरिंग, so you have to pick out topics कि कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। डेफिनेटली नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन टेल यू कि यार ये क्वेश्चन आने वाला है, बट वी कैन टेल यू, आई कैन टेल यू कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वो चीज करो, उस चीज से ना आपको समझ में आएगी कि हाँ ट्रेंड देखोगे आपकी इसमें से आ रहा है क्वेश्चन। एंड आई टेल यू, अगर आप एफकेट नहीं क्लियर कर पा रहे हो तो रिमेंबर द नेक्स्ट स्टेप्स आर वेरी मच डिफिकल्ट देन दिस। कीर्ति इज गिविंग सीरियस एग्जामिनेशन, सो वॉच दैट लेवल, वहां पर अलग से जीके का कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है। एंड यू गाइज, लाइक हाफ ऑफ द गाइज, मोर ऑफ लाइक एक्सेप्ट फॉर वन, आई गेस ऑल ऑफ यू आर गर्ल्स, सो आपकी पहली कंपटीशन हाई होती है। इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर फ्लाइंग ब्रांच, आपकी कंपटीशन पहले से हाई होगी। अगर ग्राउंड ड्यूटी है तो आपको 200 टच करना ही है। एंड गाइज, आइदर गिव इट फुल और डोंट गिव इट। अगर करना है तो पूरी करो, सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने से कुछ नहीं होगा, मेरिट आउट हो जाओगे लास्ट में, ठीक है। 200 टच करना है उस हिसाब से पढ़ो,
और उस हिसाब से पढ़ो कि मुझे रेकमेंड हो कि मेरिट इन भी करना है। ऐसा मत करो कि यार पीपल से कि वन प्रॉब्लम एट ए टाइम, विच इज वेरी राइट, बट दैट प्रॉब्लम इफ यू सॉल्व विथ ओनली 1 मार्क्स, अगर आपने 170 कट ऑफ है, आप 171 लाए, no matter how well you do in your AFSB, there will be 90% chance that you will get merit out. You will have to wait for miracles. Okay, so पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, नहीं पढ़ना है तुम पढ़ो ही मत यार, क्या क्या फायदा है इतना सब मेहनत करने का आधा अधूरा। करना है तो पूरी करो, नहीं करना तो मत करो। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, एटलीस्ट डेडिकेट 3 to 4 आवर्स, एटलीस्ट 4 आवर्स तो डेडिकेट करो हर रोज। एक PYQ, ठीक है, और जो नहीं PYQ नहीं, एक मॉक हर रोज। आज से कितना, वी आर 16th अगस्त, और 12-13 दिन में एग्जाम है, राइट? सो एटलीस्ट आप 12 मॉक्स दे चुके होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे लगा चुके होंगे। अगर आप 18 क्वेश्चन भी लाइक समझते हो, नहीं 25 क्वेश्चन आते हैं ना जीके में, सो 25 into 10, अगर 10 मॉक्स देते हो तो 250 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, और मॉक पेपर भी आप 250 क्वेश्चन करते हो, तो यू हैव डन 500 क्वेश्चंस। ऑलराइट, आप 500 क्वेश्चन कर चुके हो ऑलरेडी जीके से। और उसके ऊपर से इफ यू हैव माइंड, इफ यू आर फॉलोइंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप चारों ऑप्शन, हाउ लाइक अगेन आई एम टेलिंग यू हाउ डिड आई स्टडी फॉर जीके इज, कि अगर कोई क्वेश्चन आया है, फॉर एग्जांपल 1930 में कौन क्या हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। सो ऑप्शन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दिखेगा आपको, बट और भी चीजें दिखेगी, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935, नेहरू रिपोर्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर, गांधी जी रिटर्न, HSRA की फॉर्मेशन, या ऐसे बाकी के 3 ऑप्शन दिखेंगे ना। अगर आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 आता है तो आप टिक करके आगे चले जाओगे, बट आई नेवर स्टडीड लाइक दैट। आई वांटेड टू नो फॉर अदर 3 ऑप्शंस आल्सो। मैंने बाकी के 3 ऑप्शंस भी पढ़े हैं उसके बारे में। फॉर एग्जांपल, अगर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 सेकंड ऑप्शन, डेफिनेटली दैट इज अ रॉन्ग ऑप्शन, बट आई वुड वांट टू नो अबाउट व्हाट इज गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935। सो व्हाट एम आई ट्राइंग, ऐसे ही करके C ऑप्शन एंड D ऑप्शन, ऐसे ही करके इफ आई एम सॉल्विंग 1 क्वेश्चन, I am indirectly solving 4 questions with that 1 question. So 500 question, if you do it like this, you will be solving 2000 question. Now I know it is looking like a fantasy world to you, but guys, I've like मैंने किया है and you have the proof. Like I can tell you, मैंने ना I'll tell you, मैंने questions भी बनाए हैं. Just a second, I'll show you. Now if you can see, just a second again. Yeah, tell me. आपने 2021 में जब बीटेक स्टडी किया तो आपके पास मटेरियल होगा। हाँ जी, अगर मटेरियल आप तो मेरे पास शेयर कर दें। मैं बताता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। हाँ, मैं आपको वो जो AFCAT 1 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था मैंने, जीके और मैथमेटिक्स का, यहीं कहीं था वो। AFCAT 220 फुल सिलेबस नहीं, लास्ट मिनट कंप्लीट हिस्ट्री रिवीजन नहीं, यहीं पर कहीं था यार वो। AFCAT नहीं, कहीं तो मिल नहीं रहा मुझे। गिव मी अ सेकंड गाइस। Yeah, this too. See this too. I'll just share it. ये questions जो है, ये I'll just share it in the group. Okay, not group. Grammarly provides suggestions for grammar, spelling. Chat. I'll just put it in the chats. ये क्वेश्चन हो गया, एंड ये क्वेश्चन पेपर है AFCAT 1 2021 में क्वेश्चन पेपर आया हुआ है ये, ठीक है। सो मैंने क्या किया था, मैं आई अलोंग विद माय फ्रेंड्स, व्हाट डिड वी डू वाज, वी हैव लाइक नोटेड डाउन, नॉट नोटेड डाउन, बट मेरा सेंटर जो था वो बैंगलोर में था। सो व्हाइल वी वर कमिंग फ्रॉम देयर, while we were coming from there, we sat in the train and started writing all the questions which we can recall, and we tend to recall 100% everything, ठीक है। सो मैंने इसका भी वीडियो बनाया हुआ है, सो मैंने शेयर कर रखा है, देख लेना आप, एनालाइज करने के लिए देख लेना कि कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन। ओके, सो डू दैट, राइट, ठीक है। एंड या मटेरियल की बात कर रहे थे, अंजुना आप मटेरियल की बात कर रहे थे। जैसे मैं बात कर रही थी, आपने 2021 का फर्स्ट किया तो आपके पास होगा जीके का। ओके सी I'll tell you यार, अगर आप तो मैं शेयर कर सकता हूँ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट,
बड़ी, like I don't have any problem, but I would not tend to, तो you know. आपने घूमने में बहुत टाइम लगाया होगा, बहुत टाइम घूमने में लगाया होगा, तो उतना टाइम हमारा बच जाएगा। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना कि यार मैं दे सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एट दिस टाइम डू यू सजेस्ट टू स्टडी फ्रॉम न्यू नोट्स? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट वांट यू टू, आपके पास तो पहले से सर एवरी सब्जेक्ट हम पूरा पूरा पढ़ चुके हैं, हर एक सब्जेक्ट पूरा पूरा पढ़ चुके हैं। अब उसमें जब आपने जो स्टडी किया है सो और कौन से notes आपने चाहिए आपको, कौन से नोट्स वो चाहिए? सिलेक्टिव मटेरियल एक बार रिवाइज कर लें, उसको मेरे पास हैंड रिटन याद नोट्स कर की, लें। पहली बात मैं बताता हूँ, मेरे पास हैंड रिटन नोट्स है। मैं बता ही देता हूँ आपको कौन सा हैंड रिटन नोट्स है। वो हिस्ट्री के हैं, पॉलिटी के हैं, ज्योग्राफी के हैं, वो भी सीडीएस लेवल के हैं, ठीक है, उससे पढ़ा था मैंने। और स्पोर्ट्स एंड ऑनर्स तो मैंने पीडीएफ से पढ़ा था, आई डोंट नो इफ आई कैन रिकॉल इट और नॉट। एंड और जीके मैंने कहाँ से पढ़ा था? Look, do you can do one thing, you can watch those videos when I was, yeah. जब मटेरियल आपको इधर उधर हो, आपको ना मतलब हो, तो आप जस्ट नोट करा दो, इस बुक से इतना, इससे इतना, इस I बुक से ये पोर्शन, यहाँ से ये यहाँ तक। अंजना, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कैन यू प्लीज? आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बट यू नो इट्स लाइक अ रोबोटिक आवाज, like बीच बीच में कट रहा है। अब आ रही है? हाँ, आ रही है। या ओके, सो मेरा नेट गया क्या? नहीं, मेरा नेट फुल है। Okay, look, so you can text me, like you can text me, you have anyhow you have my number, okay, so text me, मैं आपको provide कर दूंगा notes, but I would suggest you not to go with new notes, Anjana. I want you to be sure about it, because I don't want you to confuse, क्योंकि मेरे notes थोड़े in depth knowledge पे है। एंड आपको नोट्स चाहिए तो आप यू नो मेरे पास हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है, मेरे पास जो भी है सारे वीडियोस के फॉर्म पे यार। मैं हर रोज वहां पर कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ, आज भी डालूंगा, कल भी डालूंगा, कल भी डाला था, पिछले 8 महीने से डाल ही रहा हूँ। ओके, सो आप रादर वो देख सकते हैं, या फिर आप यू नो दिस, ये जो जूम सेशन है, ये भी चीज आपको मिल जाएगी वहीं पर, आज ही मिल जाएगी शायद से। ओके ओके। आपने कुछ इम्पोर्टेंट लिंक्स भेज दिए, ये हेल्पफुल होंगी। और अगर आप, कोई भी नया नहीं होगा, हम सब पढ़ चुके हैं जीके, और इतने दिन से सारा कोर्स सब्जेक्ट हम पढ़ चुके हैं, पर या अब सिलेक्टिव मटेरियल बस याद, ओके ओके, I'll give you, बस उनको याद। just a second, I'll do one अगर thing। आप जो मटेरियल सिलेक्टिव, देखो, I'll tell you, मेरे को ना बहुत आप सारे, नोट ही करा दो, अगर हो तो आप आपके पास नोट डाउन ही करा दो। ये बुक है? तो मैंने एफकेट जनरल अवेयरनेस की बुक परचेज कर रखी है, जनरल अवेयरनेस अगर फॉर आपके पास एफकेट लूसेंट ऐसे होती है। थी, अगर मैं बोलता था लूसेंट होती थी, तो ये लास्ट पेज में मिसलेनी करके है, ठीक है, मिसलेनी करके है, इसमें कुछ 40-50 पेज है, ठीक है। इसमें से आई टेल यू, हर एक एफकैट में कम से कम 7-8 क्वेश्चन आते हैं, 7-8 एटलीस्ट, मैं बता रहा हूँ, एटलीस्ट 7-8 क्वेश्चन आते हैं वहां से, क्योंकि सारी चीज इंक्लूड कर रखी है उन लोगों ने, बाकी सब आपकी जनरल नॉलेज में है, ठीक है। मैं आई ट्राई टू शेयर, मैं पीडीएफ बना के भेजने की कोशिश करूंगा, बट यू वुड हैव टू यू नो टेक्स्ट मी फॉर दैट, यू लाइक कीप ऑन पिंगिंग मी इन व्हाट्सएप की, दे दो मेरे को करके, देन आई डेफिनेटली डू दैट, ओके। सो सी जीके यार, मैं ना, आई डोंट थिंक कि आपको जीके अभी नया जाना चाहिए, बट इट्स योर कॉल, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट। अपार्ट फ्रॉम जीके, any other person who wants to ask question? मैंने बता दिया हाउ टू स्टडी, ओके। हर एक 4 ऑप्शन को चारों पकड़ के अलग अलग से खींचो जीके के लिए। क्या आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए आज के बाद? ओके, जैसे हर रोज एक मॉक पेपर, कम से कम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके बाद जो आपने पढ़ा है वो रिवाइज करो, फाइन, ये 2 चीज हो गए। and start counting your marks in previous year question papers also, and mocks also. It should always be above 160, 150, 160 above होना चाहिए। एंड या प्रीवियस, मतलब जो भी आपने प्रीवियसली पढ़ा है उसको रिवाइज करो, ओके। जीके के लिए, या I've got only 10 minutes left, guys, so you can ask me any questions you want.
Kirti, for serious, I'll tell you, for serious you can go for अभी से आप ना डिटेल्स में जानना स्टार्ट करो प्लीज। जो भी जैसे हिस्ट्री पॉलिटी जो मैडम या सर पढ़ा रहे हैं वो डिटेल्स में जानना स्टार्ट करो, लाइक सारी चीज डिटेल में। और आपकी क्लास थी अभी मैथ्स की, राइट? सो सारी चीज डिटेल में जानना स्टार्ट करो, बिकॉज सीरियस टेंड टू आस्क सम डिटेल क्वेश्चंस। So you didn't mention me yesterday, like आपने बोला करके मैंने अभी 4 बजे schedule किया, and why aren't you in that class? So that class is important. And oh, sorry, mathematics is not for you, right? Okay, I gotcha. So you were telling about that. Okay, cool, doesn't matter, but remember Kirti, you have to score 105 cut off गया है अभी OTA का, so it's like close to IMA का cut off 4 years before. So you have to score at least like 40 to 50 in GK and then go for, ठीक है? So yeah, that's it from my side. You want any more help from my side, you can definitely ask me. So टेस्ट सीरीज कौन सी परचेस कर लें? टेस्ट सीरीज आप कोई भी परचेस कर सकते हो, like doesn't matter, like कोई भी करो यार। कोई शॉर्ट के में तो शॉर्ट में तो 10 ही मतलब लिमिटेड ही है, तो 10 भी बहुत होते हैं यार। एक ग्रेड अप करके है, उसका मटेरियल कैसा है सर? मटेरियल नहीं, आप मॉक टेस्ट ग्रेड अप आप कोई भी लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ उसका जो मॉक, हाँ आप कोई भी लो चलेगा, सारे अच्छे करा रहे थे। अड्डा हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, ग्रेड अप हो गया, अनअकैडमी हो गया, कोई भी जिसका भी लेना लो, ठीक है, डजंट मैटर। बट व्हाट मैटर्स इज आप सॉल्व कर रहे हो, ओके? और आप हर रोज सॉल्व कर रहे हो, दैट मैटर्स। हर रोज कम से कम सब गिना के आप जो रिवीजन कर रहे हो उस पर कुछ सपोज से 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हो, सो दैट इज 100 क्वेश्चंस, एंड मॉक दे रहे हो वो भी 100 क्वेश्चन, सो अराउंड 200 से 250 क्वेश्चन हर रोज सॉल्व होना चाहिए अभी, राइट? गुड। तो ऐसा नहीं है कि अनअकैडमी ज्यादा बेस्ट हो कंपेयर टू अदर्स लाइक दैट? I'll tell you, even any educator in this world comes to you and tell you कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, don't believe that, do not। इसलिए कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दो देन कहाँ से कौन सा अच्छा है। I have never joined any coaching academy, never, cleared AFCAT। मेरे दोस्त लोग जो मैंने आपको 2 वीडियो दिखाया, दोनों ने कभी कोई कोचिंग एकेडमी ज्वाइन नहीं किया, सब खुद से मेहनत करके किया हुआ है। सो सिर्फ मॉक्स लिए हमने, मॉक्स मैंने 4 5 इनके दिए मैंने, दिन में 3 आपने किसका परचेज किया था सर? हाँ जी, आपने कौन सा मॉक परचेज किया टेक्स्ट था? बुक का किया था, ग्रेड अप का किया था, और एक और था यार वो टारगेट करके कुछ नाम था। तभी हो गई थी। हाँ जी, कुछ नहीं, हाँ सर कंटिन्यू करो। हाँ तो मैंने एक बार कोई तो याद था, वो याद नहीं मेरे को, पिछले साल लिया था मैंने। उसके बाद मुझे सब समझ में आ गया कि यार like it's self study is the most important stuff which you can do, so that I've done, all right, so you can do that as well। so yeah, वही मैं बता रहा हूँ आपको कि आप खुद से जब तक नहीं पढ़ेंगे ना तब तक कोई दुनिया, भगवान खुद आ जाए तब भी पढ़ा नहीं सकता आपको। यार मैंने खुद पढ़ा यार, गूगल यूट्यूब बुक से पढ़े हमने सब। हम लोग को, मेरे को कभी नहीं पसंद कोई और पढ़ाए, इवन दो आई कैन नॉट स्टडी when someone else can teach me, I want to study on my own, like my own, like मुझे कैसे पसंद है मैं वैसे पढ़ना चाहूंगा। It's like I'm very choosy in those things। और मुझे बुक्स भी ना बहुत चूजी हूँ मैं बुक्स के मामले में। I have सीरीज ऑफ बुक्स कभी नहीं खोली है, लेकिन मैंने ये सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट, ये बुक मैंने ऑलमोस्ट पूरी कर रखी है। मेरे को जो पसंद है वो सब किया है मैंने, ठीक है। So I'm very choosy in these kind of things। Even you bring me president also to explain what is the role of president, I will not understand, like I don't want to understand, मैं खुद समझना है, fine। So इसलिए you tend to like you do according to yourself guys, like people have created so much of a myth about this kind of examination। if you try to go on basics then you will get to know कि यार question simple आते हैं। Similarly goes for serious में अगर आप NCERT लगा दोगे ना
जीके के लिए इट्स मोर देन सफिशिएंट, जहां तक मैंने सुना, हालांकि मैंने दिया नहीं है, बट दिया है बट क्लियर नहीं किया मैंने एक बार, सो वही बात है। सो यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है। अभी फिलहाल व्हाट एम आई ट्राइंग टू से यू इज डू नॉट कंफ्यूज योरसेल्फ again. I'm running out of time. What do I want from you is, if you follow this, you'll definitely going to clear your examination. हर रोज मॉक पेपर एक तो दोगे आप विथ टाइमिंग। हाँ, विथ टाइमिंग, विदाउट टाइमिंग इज लाइक स्पीड विथ एक्यूरेसी शुड बी देयर। इफ यू हैव स्पीड बट योर क्वेश्चंस आर रॉन्ग, एक्यूरेसी नहीं है, देयर इज नो मैटर। इफ यू हैव एक्यूरेसी, इफ यू डोंट हैव स्पीड, 7th क्लास का बच्चा भी मैथ सॉल्व कर लेगा वो तो। स्पीड विथ एक्यूरेसी, यू हैव टू टेक इट बोथ टुगेदर, ओके, साथ में लेके चलना बहुत जरूरी है। फाइन, तो इसलिए बता रहा हूँ स्पीड विथ एक्यूरेसी, इसलिए टाइमिंग के साथ सॉल्व करना स्टार्ट करो। फाइन, एंड या वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, हर रोज आपको वीडियोस मिलेंगी जो जो इंपॉर्टेंट स्टफ्स है, ओके। आई एम ट्राइंग टू गेट वन ऑफ माय फ्रेंड आल्सो जो INS में रेकमेंड हुआ है, ओके, CDS थ्रू INA रेकमेंड हुआ है, वो उसने AFCAT भी क्लियर किया, AFCAT भी रेकमेंड हुआ है वो, ओके। मैं उसको बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ही इज काइंड ऑफ बिजी राइट नाउ, सो आई डोंट नो वेदर I'll get him or not, but try to learn from their experiences and then try to analyze yourself where you stand, guys. All right, so हर रोज एक मॉक, previous year question paper और things which you have studied, start revising. All right, ये 3 चीज हर रोज आप करते रहोगे, अप्रोक्सीमेटली 250 से 300 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन भी करोगे। 200 क्वेश्चन तो आप मॉक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही कर लोगे, उसके ऊपर से आप 50-60 क्वेश्चन भी करोगे, यू आर गोइंग टू क्लियर दैट एग्जामिनेशन गाइस। बट कीप अ एम कि आपको सॉल्व करना है, बिकॉज द अल्टीमेट गोल इज फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस ओवर देयर, ओके। कितना रिवाइज किया है, कहां से किया है, कैसे किया है, डजंट मैटर, वहां क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, दैट्स इट। कैसे आ रहा है पता नहीं, कहां से आ रहा है पता नहीं, आंसर आ रहा है, बस उतना ही चाहिए। उसके लिए इतनी मेहनत करनी जरूरी। मैं खुद बता रहा हूँ कि आई एम गिविंग यू द पाथ, नो वन एल्स विल गिव यू दिस पाथ, ओके। I'm giving you, like, I'm not taking anything from you. I just want you to work hard, straight. हर रोज एक क्वेश्चन पेपर, एक मॉक पेपर और जो रिवीजन करना है आपको, इतना करोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। Do not tend to confuse yourself. Have a high morale, confidence high रखो, जो आपने पढ़ा है उस पर भरोसा रखो, जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करो, मॉक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहो। मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ना मत गलती से भी, मैथ्स और रीजनिंग को इतना पक्का करो कि आपको कहीं से मार्क्स ही नहीं जा पाए वहां से। फाइन, यस सर। Yes, sir. ओके, सो यू हैव माय नंबर। सर टेस्ट, मॉक टेस्ट रिकमेंड किए थे वो रिपीट कर दो, मैंने सुन नहीं पाए थे। आप कोई भी जा सकते हो, मुझे कोई नहीं। आप एक काम करो, कोई भी ले लो यार, आई डोंट माइंड, कोई भी ले लो। आप एक काम करो, टेक्स्ट करो, मैं बताता हूँ, ओके। मेरा नंबर है, एक काम करो, आप ग्रेड अप का ले लो, एक ग्रेड अप का ले लो, या फिर टेक्स्ट बुक का ले लो, कोई भी एक ले लो और सॉल्व करना स्टार्ट करो। रिमेंबर, द मोर यू डू द मोर कॉन्फिडेंस यू गेट। अगर दिन में दो ग्रेड अप के 3000 के करीब मॉक डाले हुए हैं उन्होंने, उसको मैंने एक्सेस कर लिया है। ठीक है, फिर अच्छी मोर बात। देन 3000 मॉक डाल रखे उन्होंने। 1000 क्वेश्चन पेपर, यस सर, उसका एक्सेस कर रखा है। ओह माय गॉड, 3000 क्वेश्चन पेपर इज लाइक, क्वेश्चंस होंगे मे बी। हाँ, 3000 मॉक पेपर्स कौन डेवलप करेगा यार? आई डोंट थिंक सो। नहीं, क्वेश्चंस होंगे। ग्रीन कार्ड जो होता है ग्रेड अप का, वो जो भी, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट खैर ठीक है, इतना सब करो, इट्स मोर देन सफिशिएंट। ऑलराइट, I'm running out of time, guys. If you want any help, you have my number. All right, you can contact me anytime. ओके। Thank you, and मेरे चैनल को चेक आउट करना जरूर। यस, सब्सक्राइब करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता सर यार, कर लिया और लाइक भी कर दिया। मैं उसके लिए नहीं करता कुछ भी, मेरे को बस नॉलेज शेयर करना है, इंटरेस्ट है इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है, डजंट मैटर। So yeah, thank you so much for your presence, guys. If you have any doubt, you can. Thank you, sir. Bye bye.